Good morning, dear students. First of all, again, I am going to give all of the students who have submitted yesterday the homework assignment. For them, very good. All of you have done very well. And rest of the students still, I believe couple of students are still, they have not sent it. So if it is request that all of you try to submit the homework. So the greet part I am doing in class only, correct? So you will think that sir is not greeting in WhatsApp. I will greet you here only, dear. Fine, because in that platform I kept it for only for your homework that I believe all of you are sending. So once again, thank you very much to all of you. All of you are doing well while submitting the homework and everything. All of you are watching videos also. That part is also, it is a good one because I have seen that almost all the students, they have seen those videos of complex numbers. So go through these videos. It will definitely help you to understand the topic and everything. Now, other day what we did, the values of omega, I am just going to recap those concepts, that cube roots of unity, what we were doing. So cube roots of unity, which came 1, omega and omega square, correct? This is cube root of unity. So the values are 1 omega, omega square, and we have the values of omega -1 plus I root 3 by 2, and omega square is -1 minus I root 3 by 2. These are the values of omega and omega square. So now, dear, then we did the relationship between omega, omega square, 1 plus omega square. This is going to be 0. From this result, we have so many results, like 1 plus omega is going to be minus omega square. Then we have 1 plus omega square, which is minus omega. Then we have omega plus omega square, which is -1. Then we made it the general formula, omega q, it came 1. So omega 3n, we used to write 1, omega 3n plus 1, which is omega, and omega 3n plus 2 is omega square, correct? When you divide by 3 to the power of omega, if remainder is 0, the value is going to be 1. Fine. If remainder is 1, if you divide by 3, the value is going to be omega, and remainder is 2, then value is omega square. Fine. So these basic concepts we did in last class, and we did couple of sums based on omega, omega square also. Now from there I am continuing some problems based on omega, omega square. Fine. Now look at this. We'll start with problems based on omega and omega square. Other day also we did couple of sums. Today also we will solve couple of sums based on omega and omega square. Look at the question. This question is value of question 1. I will write value of 2 plus omega square whole to the power 3 minus 1 minus 3 omega plus omega square and whole to the power 3 is equals to, this value we have to find, correct? If you say the option part, so if we go the option part, so I can write the option 4, 65, 8 and -1. Let's say these are 4 options that are given. Out of these, one option will be the correct one. Now we'll solve this question. So look at this, 2 plus omega square, we know the formula, which is -1, correct? And this is whole cube. 2 plus omega square, all of you know. Omega plus omega square is -1, correct? This is a result. And minus
here 1 plus omega square I will collect and minus 3 omega I'll keep this side and this is whole cube. ठीक है भाई, यहाँ तक is equals to, ये कितना हो गया डियर, 2 minus 1 is going to be 1. 1 का होल क्यूब क्या होगा, 1 होगा, माइनस इधर आप देख लीजिए 1 plus omega square is minus omega and this is minus 3 omega and whole to the power 3 which is equal to 1 minus, ये कितनी हो जाएगी डियर, minus 4 omega whole cube which is equal to 1 minus 4 omega cube is minus 64 omega cube, correct? And all of you know omega q is how much, omega q is 1. So here 1 minus and this minus minus is become plus and this is nothing but 65. Fine. So 65 is the correct answer. This option is the correct one. Correct. So you came to know what are the formula we have used, omega plus omega square, which is minus 1. And then I clubbed 1 and omega square in one place, 1 plus omega square, and minus 3 omega I kept it this side. Now here it is 2 minus 1, 1 whole cube is 1. And here it is 1 plus omega square is minus omega and this is minus 3 omega. So it becomes minus 4 omega whole cube. अब आप इस minus 4 omega whole cube को whole cube कर दें तो माइनस का ऑड पावर है तो ये माइनस ही छोड़ेगा and 4 whole cube is 64 and omega cube. Omega q all of you know 1. So this become minus 64 and this outside it is minus so it becomes plus. So 1 plus 64 is 65. That is our answer. Correct? तो ऐसे सम एनडीए में भी आते हैं, तो अभी से आप इन तरह के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो एनडीए के भी प्रॉब्लम्स यू विल डू इट इजीली. ठीक है, चलिए वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. लुक एट दिस. एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स डियर, बहुत सिंपल है. क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, जितने फॉर्मूलाज वगैरह लिखाए जाते हैं उसको रिकैप करते रहिए, वीडियोस देखते रहेंगे तो वो रिकैप होता रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, these all questions are from your textbook dear. c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू चाहिए. मैं ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि बुक में शो दैट दिया हुआ है. ऑप्शंस में यहां लिख दूं. ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन है 1, दूसरा है ओमेगा, थर्ड ऑप्शन इज ओमेगा स्क्वायर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज. ठीक है, सो विल सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम. लुक एट दिस वैल्यू ऑफ दिस. So in this problem dear, see we cannot take b and c में common so that omega plus omega square बन जाए, because formula में 1 plus omega square is 0 होती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं b और c में तो कॉमन नहीं ले सकता हूँ, b और c टू डिफरेंट नंबर. बट डिनोमिनेटर में देखो आपको a ओमेगा दिख रहा है और b ओमेगा स्क्वायर. तो ऐसा करते हैं, मैं ओमेगा से न्यूमरेटर को इंटू कर लेता हूँ. ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है उसको मैंने ओमेगा से इंटू किया, तो उतने ही ओमेगा से आप नीचे भी इंटू कर दीजिए. करेक्ट, तभी तो वो बैलेंस होगा. एंड मैथमेटिकली इट इज ट्रू कि आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं. फाइन, ये बात क्लियर हुई. मैंने ओमेगा और ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ मैं न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ. ए ओमेगा, दिस इज बी ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस सी ओमेगा क्यूब. डिनोमिनेटर को मैं ओमेगा बाहर ही रखूंगा, इसको इंटू नहीं करूंगा, ये ऐसे ही रखता हूं. सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन. ये जो ए ओमेगा न्यूमरेटर बी ओमेगा स्क्वायर नीचे दिख रहा है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है. ठीक है, तो मैं ये दोनों को कैंसिल कर सकता हूं. फिर से मैं इसको और मॉडिफाई कर दूं, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी आई कैन राइट, बिकॉज ओमेगा क्यू इज व्हाट,
सिंस वी नो ओमेगा क्यू इज 1. फाइन, ओमेगा क्यू क्या है? 1 है. सो हियर एंड डिनोमिनेटर में मैंने ओमेगा को बाहर ही रखा है, आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड इनसाइड. और ये है सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. नाउ वी केम टू नो दिस सिचुएशन कि आई कैन कैंसिल दिस. तो अपने पास क्या रह जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा. करेक्ट, ये कैंसिल हो गया. 1 अपॉन ओमेगा लेफ्ट. और 1 के लिए आप क्या लिखते हैं? ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा. एंड सो द आंसर इज ओमेगा स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. गो थ्रू दिस प्रॉब्लम. इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना था आपको कि यहाँ पे कॉमन तो ले नहीं सकते हैं. मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई और डिवाइड ओमेगा से किया. फिर इस ओमेगा से हमने इसको इनटू कर दिया. लुक एट दिस, ये इनटू हो गया. बट ये ओमेगा को हमने आई हैव केप्ट इट आउटसाइड ओनली. मैंने ओमेगा से इनटू नहीं किया, इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दिया. फिर ऊपर हमने सी ओमेगा की वैल्यू सी करी बिकॉज ओमेगा क्यू इज 1. सो मुझे ये न्यूमरेटर और इधर का डिनोमिनेटर सेम मिला बिकॉज ये तो इनटू में है. ये कैंसिल हो गया. 1 अपॉन ओमेगा लेफ्ट. एंड 1 को आप फिर क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यू बाई ओमेगा. फाइन. सो फाइनली ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट. सो ओमेगा स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. फाइन डियर. तो ये भी सम जो है डियर आपके 11th फाइनल में पूछते हैं या एग्जाम जो होती है कॉलेज की. और एनडीए में भी ये सम आई हुई है. ठीक है, एनडीए में भी इस तरह के सम आए हुए हैं डियर. ठीक है डियर. मैं ये एनडीए की जो प्रॉब्लम्स को मैं एनडीए इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये सब में आपको लगा कि कुछ ट्रिक है, थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है. दैट इज वाई सच सम कम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम डियर. ठीक है, चलिए विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है. इसमें और भी कई जगह कुछ होगा. मान लीजिए ए ओमेगा स्क्वायर, तो आपको कॉल लेना है कि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई. अब आपके मन में चल रहा होगा क्या सर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था? तो ओमेगा स्क्वायर से करने में आप देखो डिनोमिनेटर में ए ओमेगा है. ठीक है ना, तो यहाँ पे ए के साथ क्या चाहिए? ओमेगा लगना चाहिए. तो इसलिए ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओमेगा स्क्वायर से नहीं किया. करेक्ट. चलिए विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. लुक एट दिस. नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. क्वेश्चन वैल्यू चाहिए अपने को. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू. इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 1, 0, -1 और 2. ये ऑप्शंस है, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा. सो विल स्टार्ट. हाउ विल स्टार्ट दिस? सो वी हैव a प्लस बी. तो आप कुछ नहीं कर सकते, a प्लस बी इज a प्लस बी. अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके हम क्लब कर लेते हैं ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर को. सो ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आई क्लब्ड. एंड दूसरा बी ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा को क्लब कर लें. सो दिस इज बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा. फाइन. ऐसा क्यों क्लब किया? क्योंकि कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा विच इज फॉर्मूला. तो ए प्लस बी प्लस ए कॉमन ले लीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. हियर यू टेक कॉमन बी, यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. एंड ऑल ऑफ यू अवेयर फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है डियर? -1. करेक्ट. सो ये रिजल्ट को यूज करेंगे हम. ठीक है. सो हियर व्हाट वी कैन राइट a प्लस बी प्लस a इंटू -1 प्लस b इंटू -1. फाइन. So what left? A plus B minus A minus B. ठीक है. सो ये पूरा कैंसिल हो गया. क्या रह गया अपने को? 0. सो 0 इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट. सो यू क्लब. और आपको फॉर्मूला के ध्यान में है
तो उस अकॉर्डिंग आपने ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर को क्लब किया, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा को क्लब किया. देयर यू टुक कॉमन ए एंड बी and then omega plus omega square came. That you know the value of omega plus omega square, which is -1. So a plus b plus a into -1 plus b into -1. So at the end a plus b minus a minus b, which is nothing but 0. Fine. It's a simple one, very basic question it is. But what is important? Formula has to be perfect, and which is always I am saying in mathematics, this is concept. Formula is concept in 11th 12th में mathematics में formula को concept कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये concept clear रहेगा तो ही आप problems कर सकते हैं. फाइन. और basic concept क्या है? प्लस माइनस करना, वो तो आप सभी को पता है. प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सभी कुछ जानते हैं. ये ऑपरेशन है. ऑपरेशंस आप 11th के स्टूडेंट को सबको पता होता है. तो ऑपरेशंस में यू आर परफेक्ट. आई एम 100% श्योर दैट nobody will do any operation mistake. So carefully मैथमेटिक्स को सॉल्व करें. ठीक है ना. ये बहुत गुस्से वाला सब्जेक्ट है. इसको ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो ये आपसे भागने लगेगा. ये बहुत एडोरेबल है. इसको थोड़ा प्यार से सॉल्व कीजिए, अच्छे मन से समझिए, तो ये आपके साथ पूरी लाइफ भर रहेगा. ठीक है ना. थोड़ा ये गुस्सैल सा सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से वाह वाह करते रहिए. आई गॉट इट, हैंड्स अप कीजिए. यस आई डिड इट, आई सॉल्व इट. खुश होइए अपने सम को करने के बाद. देखिए आपको ये सारे प्रॉब्लम्स और मैथमेटिक्स बिकम्स वेरी सिंपल. चलिए, तो इन सब बातों के बाद फिर से हम प्रॉब्लम पे आते हैं. लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन फ्रॉम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से ले लेते हैं हम. वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए. मैं ऑप्शन यहां लिख देता हूं. एक ऑप्शन है ए क्यू प्लस बी क्यू, सेकेंड ऑप्शन है ए क्यू माइनस बी क्यू, थर्ड ऑप्शन है ए क्यू, एंड फोर्थ में नन ऑफ दीज. ठीक है, नन ऑफ दीज. इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट है. करेक्ट. So we'll start solving this problem. Look at this. We have a minus b into a minus b omega into a minus b omega square. अब मैं कहाँ से इंटू स्टार्ट करूँ? तो मैं फर्स्ट सेकंड को नहीं इंटू करूँगा, मैं सेकंड और थर्ड को इंटू करूँगा, सो दैट उसमें ओमेगा के टर्म है जो कुछ वैल्यूज के साथ आ जाएंगे, है ना. तो मैं सेकंड और थर्ड को इंटू करता हूँ. ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा एंड प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यू. ठीक है, ये इंटू क्लियर है. बेसिक मल्टीप्लीकेशन. नाउ दिस इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर अपना ए स्क्वायर आ गया. यहां से मैं माइनस ए बी कॉमन ले सकता हूं. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह गया. ठीक है, और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या है डियर? 1. तो ये बी स्क्वायर रह गया. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में हम और क्या लिख सकते हैं डियर? ए माइनस बी. ठीक है, और ये आ गया डियर ए स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट इज -1. ये आपकी फॉर्मूला और आपके पेन में बैठ चुका है. सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और आपको ये पता है इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है? ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि इसका आप फैक्टर भी जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का. ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो द आंसर इज ए क्यू माइनस बी क्यू. हमारा बी ऑप्शन जो था
वो करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, सो द आंसर इज AQ माइनस BQ। गो थ्रू कीजिए, वेरी सिंपल, बेसिक इनटू है। आपको केयरफुल रहना था कि मैंने इस दोनों को इनटू पहले किया। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कई बच्चों को कि ये पहले से इसको इनटू कर लेते हैं, तो इट टेक्स टाइम डियर, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ओमेगा वाले टर्म को ही पहले मैंने इनटू किया। ठीक है, लुक एट दिस। फिर A माइनस बी को हमने कहीं मल्टीप्लाई ही नहीं किया और ये ऑटोमेटिकली अपने को एक फॉर्मूला दे दिया विच इज AQ माइनस BQ। अगर आप इनटू भी करोगे यू विल गेट AQ माइनस BQ ओनली। करेक्ट? सो AQ माइनस BQ इज द आंसर for this particular sum. Now we'll move to our next problem. Look at this. Next problem देख लेते हैं. Problem is value चाहिए इन सबों का. Value of ओमेगा प्लस 1 by ओमेगा. बड़े छोटे प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे आप? वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, उस तरीके से कीजिए, या ओमेगा हमने लिखा 1 की जगह क्या लिख देंगे आप? ओमेगा क्यू अपॉन ओमेगा, ये क्या आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होता है डियर? -1। दैट्स इट। ठीक है ना? इस 1 के लिए मैंने क्या लिखा? ओमेगा क्यू बाई ओमेगा विच इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। नेक्स्ट सम देखिए, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके प्रैक्टिस होने चाहिए। वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस है प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। सो क्या किया जाए? देखिए यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, होल क्यूब, प्लस इस ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक जगह क्लब कीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा मैंने यहाँ रखा, एंड होल टू द पावर 3। नाउ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है डियर? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट इज ऑलवेज -1। फाइन, सो 1 माइनस -1 होल क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है डियर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, so ये माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा होल क्यूब विच इज 1 प्लस 1 होल क्यूब, प्लस हो गया ये माइनस माइनस, एंड दिस इज -2 ओमेगा होल क्यूब। सो फाइनली ये 2 का होल क्यूब क्या हो गई डियर? 8, और ये कितना आ गया? -8 ओमेगा क्यूब आएगा, -8 ओमेगा क्यूब, -2 का होल क्यूब माइनस देगा, ऑड पावर है, और ओमेगा क्यूब क्या होती है डियर? 1, सो 8 माइनस 8, एंड वैल्यू इज 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। सो आई बिलीव आप समझ रहे हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है ओमेगा के। करेक्ट? कुछ सम होमवर्क भी मैं दूंगा जिससे आप और परफेक्ट हो जाओगे ओमेगा वाले प्रॉब्लम में। फाइन, नाउ आई एम डूइंग वन मोर प्रॉब्लम हियर ओमेगा, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैल्यू ऑफ, दिस इज द लास्ट सम आई एम डूइंग ओमेगा बेस्ड। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए, प्रीवियस सम को भी अच्छे से समझ के लीजिए। वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये स्क्वायर है डियर। सो चलिए, ऑल ऑफ यू नो हाउ विल हैव टू कैलकुलेट। चलिए 1 प्लस ओमेगा आप क्या लिखते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और फाइनली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसी इसी रिजल्ट से ये तीनों रिजल्ट बनी है, ठीक है ना। ये हमेशा बार बार लिखेंगे तो आपको पेन में बैठ जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया डियर, माइनस ओमेगा। यहाँ पे आते हैं, ओमेगा 4 का मतलब ओमेगा 4 इज ओमेगा, ये ओमेगा होगा, सो ये क्या रह गया 1 प्लस ओमेगा। व्हाट अबाउट ओमेगा 8, ओमेगा 8 में 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, सो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फाइन, ये दोनों इंटू होके कितना हो गया पॉजिटिव ओमेगा क्यूब, क्लियर, इंटू यहाँ से फिर से आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आ गया माइनस ओमेगा, सो फाइनली ओमेगा क्यूब इंटू पॉजिटिव ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1, so 1 is the answer. Carefully go through कीजिए। करेक्ट, इंटू इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला याद है आपको, आप वैल्यूज को डाल के सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है डियर। लुक एट दिस, इसी में मैं एक और छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूं। क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, करेक्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, है ना, तो अल्फा ओमेगा हो गया होगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर होगा। देन show that alpha to the power 4 plus beta to the power 4 plus alpha to the power minus 1 into beta to the power minus 1 is equal to 0. This we have to show. Alpha beta क्या है, complex cube roots of unity है, complex cube roots of unity. That means कि अल्फा हमारा क्या होगा, ओमेगा हो सकता है या ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी ले लें आप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दो ही है। यूनिटी का क्यूब रूट एक तो 1 होता है और दूसरे दो जो रूट होते हैं, दो रूट्स, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि उसकी वैल्यूज में आई होता है। एंड बीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। आप अल्फा को भी ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, बीटा को ओमेगा ले सकते हैं, इट्स योर कॉल। आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। चलिए तो हम LHS में आते हैं। अपना LHS क्या है हमारे पास, दिस इज गिवन अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, फाइन, एंड प्लस इसको मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कर लूँ, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, 1 इंटू 1 1, ठीक है। नाउ अल्फा 4 मीन्स ओमेगा टू दी पावर 4, बीटा 4 मीन्स ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 4 प्लस 1 upon alpha beta, that is omega into omega square, clear. Now omega 4 you will get omega, एक रिमाइंडर आ रहा है। omega 8 में कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, when you divide by 3 तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 upon omega q, that is 1 only, ठीक है ना। ओमेगा क्यू क्या होती है, ओमेगा क्यू इज 1, all of you know, so 1 upon 1 is 1, एंड ये क्या होता है डियर, 0, करेक्ट। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, सो वी हैव शोन यू हियर RHS इज 0, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी अगर चेंज भी करते हैं तो आई एम श्योर दैट यू विल नाउ अंडरस्टूड अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है ना। So I believe you understood this sum. Go through कीजिए quickly. Now look at this. We'll go to our next problem dear. Fine. So I'm going to add because now it's hang. ये hang हो जाता है कभी कभी, तो इसको मैं वापस एक नए नोट को खोलूंगा, नए पेज में, then we will have a sum. ठीक है, समटाइम इट हैंग देयर, सो इसके लिए क्या है, फिर से मैं एक नया पोर्ट्रेट खोल देता हूं। लुक एट दिस, नाउ वी हैव नेक्स्ट सिचुएशन, इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डियर
इसको कहते हैं लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये भारी भरकम वर्ड को समझिए, ये लोकस वर्ड, ये लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? सी डियर, लोकस का मतलब होता है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन का जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है उसको कहते हैं लोकस। क्या? किसी भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन, लेट्स से एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई है, एक कोई पॉइंट P है और ये A पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस P का कोऑर्डिनेट लेट्स से XY है और A का कोऑर्डिनेट लेट्स से 1 2 है। तो ये ज्योमेट्री क्या है? लेंथ है। तो लेंथ अगर मैं लेंथ ऑफ PA लिखूं तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। सो रूट अंडर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो x और y में आया इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, ये कहलाता है लोकस ऑफ दिस ज्योमेट्री, यानी ये लेंथ एक ज्योमेट्री है। करेक्ट? तो इसकी लेंथ ऑफ P को हमने देखो x और y कार्टेशियन में लिखा, तो इस टर्म को कहते हैं लोकस, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी। दैट मीन्स लोकस इज व्हाट? ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं विच सैटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन एंड इट प्रोवाइड्स एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब आप देखना 11th क्लास में हम सर्कल को, ये जो सर्कल होता है, जो 9th-10th में आप केवल सर्कल बनाते थे, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस सर्कल के सेंटर को मैंने ओरिजिन पे रखा, कोई पॉइंट यहाँ P लिया कार्टेशियन सिस्टम पे, ठीक है, और इसकी रेडियस को मैंने R लिया, और ये पॉइंट मैंने अगर XY लिया है तो रेडियस R क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। सो रूट अंडर x माइनस 0 स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। करेक्ट? अब मैं इसको स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो क्या मिलना है अपने को? R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये जो कार्टेशियन इक्वेशन मिला, ये जो मुझे एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिला, that is known as locus of a circle whose center at origin। इसको क्या मैं लिखूंगा? This is locus or algebraic equation, locus of a circle, ठीक है, whose center at origin, या आप इसको बोलेंगे an algebraic equation, algebraic equation of a सर्कल, ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सो लोकस क्या बताता है? लोकस हमें किसी भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को या ज्योमेट्री की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसको लोकस कहते हैं। अब डियर, जब आप 11th में आए हैं तो आपको ज्योमेट्री कहीं नहीं पढ़नी होती है। पूरी ज्योमेट्री जो है आपकी 9th-10th की, सब कुछ सारे ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने में डाइजेस्ट कर लेगा। जब आप यहाँ पे 11th में 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमें केवल ज्योमेट्री अब बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है 11th-12th में, याद रखिए, सब कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाइजेस्ट हो जाएगा, सारे ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खा जाएगा, और आपको केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्किल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा। अंडरस्टूड? सो मैंने जो इतने देर ये जो बातें डिस्कस की है, ये मैंने लोकस के बारे में बोला है। अब आप इसको नटसेल क्या समझ के लेंगे कि लोकस का मतलब है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, जो उस ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करती है। तो हमें लोकस का मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई ज्योमेट्री होगी, कोई कंडीशन होगी, तो उससे मुझे क्या इक्वेशन मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लुक एट दिस, मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं। द सिचुएशन इज गिवन कि लोकस ऑफ जेड इफ मॉड जेड इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, यू फाइंड लोकस ऑफ जेड इफ मॉड जेड इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? तो लेट जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज एक्स प्लस आई वाई। करेक्ट? अब उसने बोला है मॉड जेड इक्वल्स टू 10 है, तो यानी मॉड जेड विच इज मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ऑल ऑफ यू नो विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। करेक्ट? और ये क्या दी हुई थी? 10 दी हुई है। फाइन, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज 100। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। यही इक्वेशन लोकस हो गया इस ज्योमेट्री का। ये ज्योमेट्री जो दी थी मॉड z इक्वल्स टू 10, इसकी जो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। दिस इज द लोकस डियर। ठीक है, देखो ये सर्कल ही होता है, मैंने जो सर्कल की ये बात यहाँ की, ये सर्कल ही है, बट हियर यू डोंट हैव टू टेल विच टाइप ऑफ लोकस केम। नो नीड टू टेल यू कि ये सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है। देयर आर वेरियस शेप्स, यू विल कम टू नो लेटर ऑन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारे शेप्स, नए शेप्स पता चलेंगे आपको। सर्किल के बाद आपके पैराबोला आएंगे, एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा। उन सभी के लोकस इक्वेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट सीखा, हमें क्या करना था, लोकस ऑफ अ जेड इफ मॉड जेड इक्वल्स टू 10। ये जो मॉड जेड था ये थी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की, तो हमने जेड ले लिया एक्स प्लस आई वाई, करेक्ट। मॉड जेड क्या होता है जेड का, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज गिवन 10, तो 10 इक्वल्स टू लिया। अब हमने स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100। आप पूछेंगे सर क्या मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 छोड़ सकता हूँ? ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट स्क्वायर कर देने से क्या होगा कि ऑप्शन में मैच कर पाएंगे, या आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे आप सर्कल भी सीखेंगे, आगे की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सीखेंगे। ठीक है, अब उस समय जाके थोड़ी स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर इधर ही हटा दो तो एक इक्वेशन दिखता है तुम्हें एक्स और वाई में। ये एक्स और वाई कार्टेशियन है, तो आपके बुक में लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकस ऑफ जेड। क्या क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, फाइंड, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कैसे आपके टेक्स्ट बुक में है, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन यू नो एक्स और वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस ऑफ जेड। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे मेंशन किया है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, लोकस ऑफ जेड इफ मॉड जेड इक्वल्स टू 10। मीनिंग इज सेम। कार्टेशियन का मतलब आपको क्लियरिटी है कि एक्स और वाई में होता है, हर जगह मैंने एक्स और वाई दिखाया। जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई है। किसी ने बच्चे ने पूछा सर मैं जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी ले लिया तो क्या होगा, तो ये भी वही होगा, ए आपका एक्स एक्सिस होगा, बी वाई एक्सिस में ट्रीट होगा। वाई यू वरीड? समटाइम्स स्टूडेंट से सर मैं जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी ले लिया, तब तो कार्टेशियन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ए और बी आपका एक्सिस में, ए को आपने रियल एक्सिस लेना है और बी को आपको इमेजिनरी एक्सिस लेना है। दैट वे ऑल्सो यू कैन राइट लोकस, करेक्ट। सो विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स इन लोकस ऑफ जेड। सो ये मैंने आपको अभी ये लोकस ऑफ जेड दिया, एक दो सिचुएशन और इमीडिएटली देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स लोकस के किए जाएंगे। एक और सम देखिए लोकस पे ही, हमें फिर से निकालना है डियर लोकस ऑफ जेड। लोकस ऑफ जेड चाहिए इफ मॉड जेड माइनस 5 प्लस 6i इज इक्वल टू 5 इट इज गिवन। ठीक है, जेड माइनस 5 प्लस 6i इज 5 दिया है, तो इसकी लोकस क्या होगी, इक्वेशन क्या निकलेगी। तो आप सबसे पहले जेड क्या ले लेंगे, एक्स प्लस आई वाई। जेड विल टेक एक्स प्लस आई वाई डियर। ठीक है, नाउ सो इनसाइड विल गो एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, माइनस 5 प्लस 6i, मैंने पुट किया जेड की वैल्यू विच इज इक्वल टू 5 हियर। अब मैं x और y को बराबर सेट करूं तो ही मॉडुलस निकलेगा, रियल और इमेजिनरी को एक साथ। सो x माइनस 5 प्लस i मैंने कॉमन ले लिया, y प्लस 6 इट केम विच इज 5। अब मॉडुलस तो पता है आपको, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रूट करते हैं आप, तो मॉडुलस इसका कैसे आ जाएगा, रूट ओवर x माइनस 5, x का स्क्वायर जो रियल है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज y प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 5। फाइन, देखिए ये कार्टेशियन पहुंच गया, मॉड से हम मॉड की वैल्यू निकाल लिया, मॉडुलस निकाल लिया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर का। x का ये x है, ये y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आगे की काम क्या है, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स स्क्वायर कर लिया। सो व्हेन यू डू स्क्वायर, सो व्हाट लेफ्ट, x माइनस 5 होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब चाहो तो इसको फर्दर ब्रेक भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ दिया, दैट इज सफिशिएंट। तो बुक्स में इसको ब्रेक करके दिया जाता है, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और ये हो जाएगा डियर 12y और 25 और 25 कैंसिल हो गया तो ये रह गया 36 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द लोकस ऑफ द गिवन ज्योमेट्री। दिस, व्हाट इज द गिवन ज्योमेट्री? The given geometry is mod z minus 5 plus 6i equals to 5. ठीक है, locus of z if mod z minus 5 plus 6i is equals to 5। तो इसकी locus हमें ये मिल गई, ये इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस 36। ये सारे जो इक्वेशन दिख रहे हैं डियर, ये सब आप जान जाओगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ोगे। ये भी एक इक्वेशन है सर्कल की। तो मैंने आपको अभी बोला है कि आप उसके नाम पे मत जाइए, अभी आप जस्ट कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए। इसको ही हम लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फाइन। सो डियर, इन द नेक्स्ट वीडियो we'll do some more problem in this, or final part of a complex number we will discuss in that video. So meanwhile go through this entire sum, ठीक है। So next video में हम और कुछ सम्स करेंगे।